So to take a review of Snell's law, what we have learned is about the refractive index, and the refractive index, sorry, we normally talk about n or mu. In this case, we use the mu is sin I upon sin r, and or we can say sin theta 1 upon sin theta 2, where this is the case. Okay? This is theta 2, this is theta 1. Now, whether this refractive index is of medium 2 with respect to 1 or 1 with respect to 2. Now, this is a very important question. Now, suppose this is glass and this is air, and if I say the refractive index of glass is 1.5, what does it mean? इसका meaning क्या Glass है? with respect to Glass with Yes, respect. glass with respect to air. And suppose this is the medium 1, this is medium 2, then what should I write here? Here, 1 or 2. So should I write 1 mu 2 or 2 mu 1? 1 mu 2. 2 ये mu 1. ऐसा लिखना चाहिए, ये गलत हो गया. Write this. 2 mu 1. 2 mu 1. 1. Yes, sir. Yes, sir. ये सही है. This is what it says is this is mu 2 upon mu 1. Okay. If this is not air, this is some different material, suppose water. Then the refractive index of say 2 with respect to 1. That is what it is given by mu 2 1. Okay. So remember this one or this one. Okay. Now this refractive index is always with respect to air. जो हम लिखते हैं, it is always respect to. So this mu 2 means it is mu 2 divided by mu air, and we know that mu air is 1, and therefore approximately 1. Therefore we take this mu 1 or mu 2 or n1 or n2 as the refractive index with respect to the air. Now coming back to optical fiber. Now let us draw the coaxial cylinders, and we consider these two coaxial cylinders are made up of glass. What is meant by coaxial cylinder? What is coaxial? नहीं, coaxial क्या होता है? Coaxial Having same axis. having same axis as what? Yeah, having same axis. So two cylinders will have the same axis. Okay. Like this. देखा है कभी coaxial cylinder? देखा है या नहीं देखा? प्रतीक मड़ावी 39 कोएक्सियल सिलेंडर देखा है कभी? तो ये मेटल के बॉटल्स में आते हैं वैसे. कौन से बॉटल में? मिल्टन की बॉटल्स. मिल्टन की. हाँ. Yes. Sir, thermos. Yes, thermos is yes. You have pinpointed the name. मुझे एकदम से ध्यान में नहीं आया कि मिल्टन की बॉटल मतलब क्या होता है. हाँ. So that is a thermos. और pipe with more width. Yeah. Pipe within pipe. थोड़ा सा किचन में झांको तो आपको पता चल जाएगा. घर में खाली डिब्बे जो होते हैं ना, वो कैसे रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक. हाँ. डिब्बे में डिब्बा रखा जाए, एक के अंदर एक. हाँ. That is a coaxial cylinder. That's it.
आपके घर में केबल आता है, केबल टीवी वाला केबल? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें केबल्स होती है, 2 केबल होती है, कैसे होती है, किस टाइप की एक के होती है? अंदर एक. एक के अंदर एक होती है, और बाहर की कैसे होती है? कोटेड होती है सर. हाँ, बाहर तो कोटिंग, बाहर कोटिंग होती है ऐसा बोल रहा है सर वो. कोटिंग? हाँ कोटिंग. किस किस चीज की कोटिंग होती है? पीवीसी। नहीं, वो तो अंदर का जो ये है, कॉपर केबल है, उसको कवर करता है पीवीसी, उसके बाहर होता है। सर ये प्लास्टिक. सर बहुत टाइप की कोटिंग आती है वैसे तो. हाँ, बहुत सारे टाइप की आती है, लेकिन एक कोएक्सियल केबल जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो सिंस यू आर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, so I am just curious. You should know this, that the coaxial cables, in coaxial cable the central cylinder is solid, whereas the outer cylinder is mesh type. mesh मतलब जाली, जाली जैसा होता है. अब एक बार वो केबल निकाल के देख लेना, ठीक है, उस पे आपको पता चल जाएगा. What Bojraj is saying is right, that is there is a coating, and but the function of coating is different. एंड नॉर्मली nowadays they are using coating, but पहले तो वो जाली वाला ही आता था. ठीक है, okay. So these are the coaxial cylinders, and now the difference is that they are made up of glass. Both are made up of glass, but the refractive index of this is say n1, and refractive index of this is n2, and n1 is more than n2. That is very important condition. n1 is more than n2. Now, why is it so? Why this refractive index of the inner one, which is called as core, is more than the outer one, that is called as clad? It is obvious. Core means अंदर का जो होता है उसको core कहा जाता है, और जो बाहर का होता है उसे clad कहा जाता है. ठीक है, somehow we prepared this kind of uh, cylinders, okay? And then this is axis, and let us consider the light is incident on this axial way at say, let us consider 14 degree, whatever it may be. Now if I take this as angle theta, now this I have just taken 14 degree, okay, so we'll take some practical values also. So now I am just curious if uh, the angle of refraction in the core will be less than 14 degree or more than 14 degree. Should I repeat the question? Yes, sir. Now this light which is coming from the outside of this cylinder, it is striking at say point A, and then it will go inside, right? Now when it goes inside, now this is core, this is air or some rarer medium, maybe air or maybe something else. So let us consider the refractive index as N0, but it is rarer than core and clad both. That is important. So whether the angle of refraction when it goes inside will be more than 14 degrees or less than 14 degrees. Less than. Why less than? अब अगर मोर देन बोलते तो वही क्वेश्चन होता मेरा, व्हाई मोर देन? Sir, when light travels from rarer medium to denser medium, the angle of refraction decreases. Yes, very good. So the angle of refraction will be less when it goes from rarer to denser, and therefore what we'll have to do is we have to go for certain
angle, say 10 degree. Obviously, this is with respect to surface and therefore this is with respect to the normal. Okay. It looks slightly similar to this, but it is almost 10 degree. Okay. Now, when it touches to the surface between core and clad, what will happen? What do you expect? It will reflect back to the medium. Yeah, that is one possibility. Any other possibility? Think about possibilities. There is no single answer as such. Refraction is also done. Another refraction. Yes, that is also possible. That the light will go into the clad. इस side में चली जाएगी, ठीक है? Now here, this is the angle, and let us consider this angle as phi. And depending upon the phi value, the angle of refraction, which will be measured from this side, it may be less than 90 degree, it may be 90 degree, it may be more than 90 degree. That is what we can say, right? So if it is less than 90 degree, it will go into the clad. Okay. If it is more than 90 degree, then it will remain in the core. And if it is exactly 90 degree, then it will travel along the surface of core and clad. ठीक है, समझ में आ गया? तीन possibilities. One, Yes, sir. less than 90. Second, equal to 90. And third, more than 90. So here it will go to clad, here it will go to core, and this will be on the surface. Okay. Now this condition equal to 90 when the angle of refraction is 90 degree, that means the light is traveling along the surface, is called as a critical condition. I'm not sure whether you are able to read it. Critical. And therefore, when the angle of refraction, you tell me what uh, what should I give the name to this angle? Okay, this is going along the direction, this direction, and it is 90 degree. Let us consider this angle as alpha. Normally, we people give the angle as alpha, beta, gamma, delta, and phi and theta. Theta और phi हमने use कर लिया, alpha use करते हैं. So alpha is 90 degree. When alpha is 90 degree, we write this angle as critical angle. We don't call this angle as critical angle. We call this angle as critical angle. Okay? And accordingly, when phi equal to phi c, we call this angle as theta a, which is called as acceptance angle. Now, what is the meaning of this and how we can calculate the acceptance angle in terms of, say, these parameters n1, n2, phi c, alpha, r, etc. Okay, let us try to use the Snell's law, and then once we understand the phi a, the acceptance angle, and then we can say that if the angle is, say, less than acceptance angle or more than whatever we consider, then there will be different conditions. So there will be different conditions whether the angle, the incident angle here, the angle of incidence is less than theta a or it is equal to theta a or more than theta a. Okay. So if theta is less than theta a, what will happen? If theta is equal to theta a, what will happen? And theta is more than theta a, then what will happen? So we have to find out these three conditions, and we have to find out the condition when this light will travel in this direction, so that there will be a
total internal reflection. अगर ये यहाँ से लाइट इधर चला जाता तो then it will be a total internal reflection. Now suppose for certain condition we are getting the total internal reflection here. Okay. Like this. What do you expect about these angles? They say phi c and this angle. Whether they will be same or different. What do you expect? Same angle. Okay. Any other? Why you feel, Suraj, that will be same angle? That is what I want to clear here. It won't be same angle. Why? सर Even though it is, yeah. सेम मीडियम में इसलिए क्योंकि वो मीडियम से बाहर नहीं गया सर लाइट. हाँ, Abhishek, very nice question. Very nice objection, in fact. But this is not the reflection, remember. यस सर ये रिफ्लेक्शन इंटरनल हाँ. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. This is total internal reflection. Okay. So Yes, the sir. angle that we are measuring is from the normal, and this will be 90 plus something. Okay. Something, say delta. So it is obvious that if this phi changes, then 90 plus theta will change, but it will not be same. These two will not be same because it is not a reflection. It is total internal reflection. It is a kind of refraction. Okay, it is a kind of refraction. So there is no question of this angle to be same as that of this. So they may be same at certain value, but they will not in general be same. They will not be equal. ठीक है, वो इक्वल रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. So remember this one. It may not appear very obvious, and that's why I'm stretching it. Okay. Now let us consider a condition where suppose this angle is alpha is greater than 90 degrees. So in that case, what we write is phi equal to phi c. It is a critical, sorry, phi will be more than critical angle. Am I right? Yes, no. या उल्टा होना चाहिए? पहले मैंने क्या कहा कि when this alpha is, let me write this condition also. When this alpha is 90 degree, alpha is 90 degree, then phi is equal to phi c. ठीक है? If alpha is more than 90 degree, this is critical case, a critical angle case, and this is total internal reflection. ठीक है? Alpha greater than 90 degree. Now for greater than 90 degree, what will be the value of phi? Whether it will be more than phi c or it will be less than phi c. More than 5C. Sure? Any other? कोई है लेस देन बोलने वाला? अरे क्या हुआ? It will be more than phi c. Why? Why? Because alpha is increasing, so phi will increase. Why? Because we have the simple sine the incident divided by sine reflection is equal to refractive index. Now this is going to remain constant. तो ये अगर कांस्टेंट रहता है और ये अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली दिस हैज टू इंक्रीज. ये अगर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. नहीं समझ में आया तो बोल दो, रिपीट करता हूँ.
रिपीट कीजिए सर। बिल्कुल। रेट जो है, रेट इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीसेस जो भी आपने लिया, राइट। तो अगर आपने 10 रुपए का एक पैकेट लिया तो रेट कितना हुआ? 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट लिया तो रेट कितना हुआ 10. एक पैकेट का? 10 rupees per 10 रुपए। packet. हाँ। अगर 20 रुपए के दो पैकेट लिए तो रेट कितना हुआ? 10. 10 ये नहीं हुआ। 10. रेट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, रेट कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है। रेट इज कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पैकेट्स, प्राइस विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग दिस? Yes sir. Same thing is happening here, or you can just write this as, take this sin r on right hand side. So what will happen? Now if sin I increases, sin r will increase because they are directly proportional to each other. Simple. Clear? Yes sir. अब मुझे बताओ कि अगर फाई इंक्रीज होता है तो आर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? फाई की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? नहीं? What is the relation between r and phi? अरे बताओ ना, फाई और आर में क्या? हाँ, Can you mention phi in the diagram? ये फाई, ये येलो कलर से जो दिखा है वो, ये दिख रहा है, Yes, sir. ये हो गया फाई, ठीक है। ये येलो कलर से जो मैंने दिखाया, एंड द ग्रीन कलर्ड इज आर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? Don't type because it is difficult for me to shift from here to inversely proportional. नहीं, they are not inversely proportional. No. Very simple actually. Opposite angle. अगर मैं बताता हूँ तो आप opposite angle. I don't know what is opposite angle. No, they are not opposite, I suppose. So मेरा actually, मराठी मीडियम था तो मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बट व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन क्या है? अगर फाई बढ़ता है तो आर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. फाई बढ़ता है तो आर बढ़ेगा, श्योर? कैसे होगा? ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, ये हो गया 90 डिग्री, क्यों? इज नॉर्मल, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल? 180. 180। उसमें से ये तो 90 चला गया, तो द रिलेशन इज आर प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इफ फाई इज इंक्रीजिंग तो आर क्या होना चाहिए? decrease. Decrease. ऑब्वियसली डिक्रीज, क्योंकि इसकी सम कांस्टेंट रहेगी, तो इट विल बी आर विल बी 90 माइनस 5, so r will decrease. So let me write here r will decrease. Now if r decreases, what about theta? थीटा डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है? Increase होगा. अब ये तो बहुत सिंपल है, Increase होगा. ये तो पहले भी आपने बता दिया है। Theta change होगा. Increase होगा sir. Increase. इंक्रीज होगा पक्का? Yes. इंक्रीज कैसे होगा?
यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर आपने यूज किया तो क्या होगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। सिंपल, म्यू इज कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होगा, उल्टा भी हो सकता है। आर अगर डिक्रीज हो रहा है तो थीटा भी डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब ये सब करने की क्या जरूरत है? अब ये जब होता है तो वी राइट थीटा इक्वल टू थीटा ए एंड थीटा डिक्रीजेस मींस दैट इज लेस देन थीटा। ठीक है, तो जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है राइट साइड में, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ जा रहा है ये 90 से। ठीक है, क्रिटिकल में क्या था, क्रिटिकल में था 90 डिग्री। ठीक है, तब हमारा एंगल कितना था, थीटा ए। अब ये अगर 90 से ज्यादा होता है मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा ए से ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ, बताओ ना। हाँ, फिर से अल्फा इक्वल टू 90, फाई इक्वल टू फाई सी, थीटा इक्वल टू थीटा ए हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये फिक्स है। अब हमने ये अल्फा जो है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला बड़ा सा एंगल, इसको ग्रेटर देन 90 कर दिया। ये जैसे बढ़ाया हमने सर थीटा, कर्सर दिख रहा सर, कर्सर नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ सर अभी दिख रहा Yes, हाँ, sir. ओके, तो ये यूज करता हूँ माउस वाला। ये हमने क्या किया, पहली कंडीशन ली हमने अल्फा इक्वल टू 90, क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल मतलब इसके अगर आगे जाते तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है, और इसके अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो रिफ्रैक्शन मिलता है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन। ठीक है, दैट इज अ क्रिटिकल कंडीशन। So at this critical condition, this angle alpha angle is 90 डिग्री, और उसमें जो भी आएगा फाई, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, now at this position the angle, whatever the angle we get theta a, it is called as acceptance angle। इतना समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अल्फा इज 90, फाई इज क्रिटिकल एंगल एंड थीटा इज एक्सेप्टेंस एंगल। क्लियर? Yes. अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये एंगल मैंने चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया समहाउ। अगर ये इंक्रीज करता हूं मैं तो मुझे मुझे इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर चाहिए तो क्या मुझे यहाँ से लाइट भेजना चाहिए या यहाँ से लाइट भेजना चाहिए, ये मेरा प्रॉब्लम है। मतलब थीटा शुड बी लेस देन थीटा ए और थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा, बिकॉज थीटा इक्वल टू थीटा ए इज क्रिटिकल एंगल, दिस इज क्रिटिकल सिचुएशन। ओके, तो दिस इज अल्फा इक्वल टू 90। तो अगर अल्फा ग्रेटर देन 90 होता है तो थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन थीटा होगा या लेस देन थीटा होगा, दैट इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज। तो मैंने क्या किया फिर, ये अल्फा चेंज किया, 90 से बड़ा हो गया। अगर ये बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ेगा, क्यों, साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, तो साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर। तो आई बढ़ता है तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ता है तो आई बढ़ेगा। तो अगर अल्फा बढ़ रहा है तो पाई बढ़ेगा। क्लियर? Yes. समझ में आ गया? Yes. अगर पाई बढ़ाया हमने, पाई की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आर की वैल्यू कम होगी। पाई की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो आर की वैल्यू कम होगी, क्यों, क्योंकि पाई इक्वल टू 90 माइनस आर और आर इक्वल टू 90 माइनस फाइव। ठीक, अगर आर कम हो रहा है तो थीटा ए भी कम होगा। तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन, ये if I just draw this with say red color, so in that case the light should incident
विद इन दिस एंगल, इस एंगल के अंदर ही ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। तो थीटा ए से अगर एंगल कम है तो ही ये लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जाएगा। अगर थीटा थीटा ए से ज्यादा है, एक्सेप्टेंस एंगल से ज्यादा है, तो क्या होगा? दूसरा एक कंडीशन लेते हैं, इसको और बड़ा कर देता हूं मैं एंगल, ठीक है, समझने के लिए आसान हो जाएगा। सपोज द लाइट इज इंसिडेंट इन दिस डायरेक्शन, बोले अपन, अब ये एंगल हमने थीटा ए से बढ़ाया, थीटा ए से बढ़ाया ना, ये वाला येलो वाला, तो ऑब्वियसली ये आर भी बढ़ेगा। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये आर बढ़ा दिया हमने प्रीवियस से। आर विल बी लेस देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट इट विल बी मोर देन प्रीवियस केस। तो प्रीवियस केस जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना हमें, ये इससे तो बड़ा ही है ये देखो, ये इधर, ये हो गया अब नया आर, आर डैश, ये थीटा डैश कॉरस्पॉन्डिंग आर डैश। अब क्या होगा? अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। नॉर्मल जैसे ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फाई कितना है। तो ये हो गया आपका फाई। अब मुझे बताओ कि ये राइट वाला फाई ज्यादा है कि लेफ्ट वाला ज्यादा है? लेफ्ट पक्का? राइट वाला ज्यादा है, लेफ्ट वाला कम है। Right. कम है, क्योंकि आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो फाई कम हो गया। और जैसे फाई कम हो जाएगा, ये अल्फा भी कम होगा। क्यों? फाई कम होगा तो अल्फा क्यों कम होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। तो ये कम हो गया, 90 से कम हो गया, मतलब ये कहा जाएगा लाइट। अब बताओ जरा, ये लाइट कहा जाएगा? ये इधर पे कभी चला जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, ये ऐसे चला जाएगा, इट विल बी लॉस्ट। ये लो, आ गया ध्यान में? यस सर। तो अगर ये थीटा ए एंगल जो है, दिस इज द मैक्सिमम एंगल, इससे अगर ज्यादा होता है तो लाइट विल बी लॉस्ट। अगर इससे कम होता है तो ही ये हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। क्लियर? यस सर। अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं कि ये इससे रिलेटेड कैसे है? ये अल्फा थीटा फाई सी आर, ये इससे रिलेटेड कैसे थीटा ए से? तो थीटा ए की वैल्यू निकालना है हमें, दैट इज अवर टारगेट। एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट theta a? Let us consider Snell's law here, theta and r. Okay, so Snell's law says, क्या बताता है Snell's law? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है कोर का? बोलो फटाफट। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1. n1 and the outside refractive index is N2. n0. No, not this लाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, ये लाइट लेना है हमें अभी पहले, ठीक है? वो ग्रीन वाला जो है ना, ये ग्रीन वाला इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ। तो इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, ये ग्रीन वाला जो है एंगल ऑफ, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एज थीटा एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज आर, ठीक है? फर्स्ट केस। तो व्हाट वी राइट इज, हाँ बताओ स्नेल्स लॉ क्या आएगा? साइन थीटा ए Theta upon sin r is equal to साइन थीटा अपॉन साइन आर इक्वल टू, म्यू। ये म्यू कैसे आएगा? यहाँ पे एन से दिखाया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन के टर्म्स में आएगा।
एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n0, दूसरा है n1, तीसरा है n2, क्या रिलेशन आएगा? इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये अब बताओ यार। n1 upon n0। वेरी गुड, n1 अपॉन n0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब ऐसे ही इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है फाई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है अल्फा। अल्फा में भी एनीथिंग, ठीक है, वो हम 90 बाद में लेंगे उसको। तो उस केस में क्या लिखेंगे हम? sin phi upon sin alpha। साइन फाई अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू n1 upon n2 and n2 upon n1। पक्का बताओ, n1 अपॉन n2 की n2 अपॉन n1? n2 upon n2 n1। n2 पक्का? We take normal, whenever we consider this, we take the second medium divided by the first medium। ये याद रखना, second divided by first। ठीक, इसमें कोई डाउट किसी को? Anybody has any doubt? नहीं? Sure? 100%? Okay. Now we put the condition। condition क्या है? Let me write here, तो दिखना भी चाहिए। Condition is that when alpha is 90 degree, phi will be equal to कितना? अल्फा 90 डिग्री लिया हमने, तब फाई की वैल्यू क्या ली थी? बताओ, बाकी लोग है कि छोड़ के चले गए मीटिंग? phi c। I see। दो ही लोग है क्या क्लास में? दिशा और सूरज, बाकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे। ओके, नाउ व्हेन फाई इक्वल टू फाई सी, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। दिस इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज सच दैट at which the angle of refraction is 90 degree. This is the angle of incidence. Now when this phi is phi c, we have written the condition that theta is theta a। उस केस में हम थीटा को थीटा a कंसिडर करेंगे। Okay, now putting these values here in this equation, equation 1 and 2, what we get is sin theta a divided by sin r equal to n1 upon n0, and secondly sin phi c divided by sin alpha। Now what is sin alpha? Alpha is 90 degree, equal to n2 upon n1। ठीक, any doubt? no What is the value of r? Angle r equal to in terms of phi c, it is 90 minus phi। See, 90 Yes. minus phi c, in this case 90 minus phi c। Now if we take suppose say sin r की अगर हम वैल्यू निकालते तो क्या आएगा? डायग्राम से ये हो गया ए बी सी, तो साइन आर की वैल्यू क्या आएगी? बताओ, डायग्राम दिख रहा है? बड़ा कर दे, बताओ साइन आर की वैल्यू क्या आएगी?
BC upon AC. Very good. Sin R equal to BC upon AC. But if we talk about phi के लिए ये BC upon AC क्या होगा? phi के लिए BC upon AC क्या कौन सा रिलेशन होगा? sin cos tan cos cot sec cos होगा, बराबर? So I can write is sin R equal to cos phi. यहाँ से भी निकाल सकते. If you remember any angle as sin R equal to sin 90 minus phi, so sin 90 minus theta is cos theta. तो वहां से भी निकाल सकते. Now we know sin R equal to cos phi, and therefore this equation becomes sin theta A divided by sin R. Sin R is now cos phi equal to n1 upon n0. But we know the sin phi. Sin phi की वैल्यू ये sin 90 is 1, तो sin phi की वैल्यू क्या आएगी? n2 upon n1. So if sin phi c equal to n2 upon n1, then cos phi c equal to, कैसे निकालोगे? हैं? साइन पता है, cos कैसे निकालते? भूल गए क्या सब ट्रिग्नोमेट्री? कितना सिंपल है, याद है? Yes. पढ़ा था Yes, sir. 5वीं 6वीं 7वीं जहाँ भी पढ़ा. ओके, so this is cos phi c, and therefore this is square root of 1 minus sin की वैल्यू क्या है? n2 upon n1. तो n2 square upon n1 square, तो sin square है, तो this becomes n1 square. यहाँ पे ले आएंगे हम, तो n1 square minus n2 square divided by n1 square, and this is equal to n1 square square root के बाहर निकालेंगे तो आएगा n1 square minus n2 square divided by n1. ठीक है, ये होगी cos phi की वैल्यू. Now we have the relation as sin theta A. अब ये cos phi को मैं यहाँ ले लेता हूँ, n1 upon n0 and cos phi c. और cos phi c की ये वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पुट कर दी, n1 upon n0 square root of n1 square minus n2 square divided by n1. n1 and 1 get cancelled out. So we get sin theta A will be equal to n1 square minus n2 square in square root divided by n0. आ गया theta A. Now we can just simply write that theta A equal to sin inverse of this n1 square minus n2 square upon n. ये जो एंगल आएगा, this will be the maximum angle. This will be maximum. Why maximum? इससे ज्यादा अगर आप एंगल करते हो तो क्या होगा? एंगल अगर बढ़ाया आपने इससे, थीटा ए से बढ़ाया, क्या होगा? ये देखो येलो वाला, ये सीधा n2 में चला जाएगा. n2 में अगर जाता है तो कोई फायदा ही नहीं, because it will get lost, right? Now let me show some simulation. Okay. Any question? Okay. This is the same thing what we have learned right now. Okay. Now here, what we can do is we can change the refractive index of say glass, and I don't know what's he has taken C. Okay. So refractive index is changing. Okay. You can change this simply. So now, if we increase the, suppose this is the acceptance angle. Now this is what the critical angle is, sorry, the acceptance angle is. अगर इसके बाहर अगर ये चला जाता है एंगल,
तो क्या होगा, ये देखो आप, दिख रहा है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. Yes, sir. So what is happening is, you can see here, this is a scope, and you can see the light is incident, and it maximum light get refracted into the clad. This is core, this is clad. Blue is core and greenish is clad. Okay. Okay, this is core and clad. And now if we decrease the angle slowly, now you can see the angle, the light is going into the clad, but the intensity is decreasing, whereas the intensity of this reflection is slightly, it will increase, slowly it will increase. Okay. And now you can see inside this cone or the angle, acceptance angle, if the angle is the angle is less than acceptance angle, theta max दिख रहा है नीचे 20.12, तो ये थीटा अगर 20.12 से कम है, 18 है अभी इस वक्त, देन यू गेट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर ये थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए, 20 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 35 हो गया, ठीक है, 28 हो गया, you get all the light will be lost, all or most of the light will be lost in the clad। ठीक है, आ गया ध्यान में? Yes, sir. इसका मैं ये लिंक जो है मैं वो शेयर कर दूंगा, you can just see that if this is very close, like the core refractive index is 1.5 and the clad refractive index is 1.4, now the angle has reduced to 14, वो जो हम एग्जांपल ले रहे थे अभी, ठीक है। इसमें जितना जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, उतना उतना ये एक्सेप्टेंस एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर हाँ सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो लाइट जो है वो क्या एक्सियल सिलेंडर से बाहर नहीं जाती क्या? बाहर नहीं जाती क्या? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, इट विल तो बी फिर सर टोटली, हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो वो उसका लॉस जो है वो बहुत कम रहेगा। सर फिर वो कल आपने जो एग्जांपल दिया था वीडियो में दिवाली के वक्त की, वो हाँ हाँ तो सर उसमें तो अपने को लाइट दिखती सर बाहर। हाँ, हाँ, उसमें, चमक ग्लो होता हाँ ना। उसमें जो फिनोमिना हमें यूज करना है वो हमें लाइट दिखाना है। हाँ सर, तो फिर मटेरियल थोड़ा चेंज रहता है क्या? नहीं, मटेरियल वो जो होता है वो प्लास्टिक फाइबर होता है एक्चुअली, तो दैट इज क्वाइट चीप एंड सर दैट हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी। वो भी हम यूज करते हैं, रिमेम्बर, वो भी हम यूज करते हैं। सर फिर वहां पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता तो फिर लाइट बाहर कैसे दिखती सर अपने को, मतलब नहीं, विजिबल कैसे होती? वो तो एंड से आ रही ना बाहर, जैसे इस एंड से, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, इसके ट्यूब भी तो एंड ग्लो, से। जो ट्यूब है वो भी तो ग्लो करके दिखती है सर। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत तो, अब उसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेट है, ठीक है, वो अगर टर्न हो गई तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ का या यहाँ का, तो यहाँ से थोड़ा सा लाइट वो जैसे अभी मैं ये दिखाता हूँ आपको, या एंगल अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे अगर लाते हैं, ये देखो, ठीक है, तो कुछ लाइट तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस टाइप का फिनोमिना उसमें होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं होते। सर फिर इसको क्या बोलते हैं? ये तो टोटल इंटरनल नहीं हुआ। नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, हाँ वो कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें तो ये सिमुलेशन है, तो इसमें थोड़ा बहुत ये चले गए, डिफरेंस जो है वो तो चले गई, लेकिन अगर आप एक्चुअल जब देखेंगे तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और ये कम होता है, और फिर एक्सियल अगर लेते हैं तो देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट ऐसे जा रहा है।
सीधा चला जा रहा है, ठीक है, अलॉन्ग द एक्सिस, क्योंकि ये बहुत कम होता है इसका। तो दिस इज क्रिटिकल सिचुएशन काइंड ऑफ। और कोई क्वेश्चन? आर यू सेटिस्फाइड अभिषेक? यस सर। तो वो उसमें उसके नीचे जो होता है ना, वो एलईडी लगाया होता है, अलग अलग कलर के एलईडी, वो ट्यूब से बाहर निकलता है लाइट, तो दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए वहां हम अच्छा, वो पर्पसफुली उसको अलाउ करते हैं क्लैड में जाने के लिए। तो पार्ट ऑफ इट गोज टू क्लैड एंड मोस्ट ऑफ द लाइट गोज और इट कम्स आउट फ्रॉम द एंड। एंड आप देखोगे ना तो बहुत ब्राइट दिखेगा आपको। हाँ सर, ऐसे पॉइंटेड हाँ दिखता है सर। हाँ, पॉइंटेड दिखता है और वहां से लाइट, मुझे पता नहीं, मेरे पास होगा भी वो। हाँ मेरा ये, क्वेश्चन वही था सर कि ऐसे फाइबर से कैसे लाइट निकलती, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था, यही क्वेश्चन था सर। हाँ तो वही, वो लाइट फाइबर से आ रहा है ना, तो ये तो वैसे हो गया कि टनल से जैसे हमें लाइट दिखता है ना, वैसे ये दिखता है। हाँ सर। तो वो टनल से ही आएगा, बाहर से आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, ठीक है। लेट मी शेयर दिस इमेज विथ यू, इमेज में क्लियरली पता चल जाएगा आपको। ये वो, बस इसमें एक ही कलर का लाइट दिखा रहा है। ये देखो, ये स्पॉट जो दिख रहे हैं ना, व्हाइट व्हाइट, तो लाइट इज कमिंग आउट ऑफ दिस स्पॉट्स। यस सर, एंड है सर। हाँ, और ये जो टर्निंग हो रहा है, टर्निंग पे भी लाइट थोड़ा सा ये होता है, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है, बाहर निकलता है लाइट, तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर बहुत टर्न नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिक वाला होता है ना, इलेक्ट्रिक वायर आप ऐसे लेंगे और 90 डिग्री में टर्न करेंगे तो दैट इज ओके। ऑप्टिकल फाइबर यू हैव टू टर्न लाइक दिस, उसका टर्निंग रेडियस होता है, दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस जो है टर्निंग रेडियस, नहीं तो वो टूट जाएगा, ये लॉस हो जाएगा लाइट। एनी अदर क्वेश्चन? I just forgot to tell you about the cone. Now this is the critical angle, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, वो क्रिटिकल एंगल है। तो ये क्रिटिकल एंगल इस साइड में है, तो वैसे ही इस साइड में भी होगा। लेट मी यूज द स्केल देन। इस साइड में भी होगा ये, और ये 3 डायमेंशनल है तो सभी साइड में होगा। एंड इफ वी go for kind of 3 dimensional structure, then it will be a cone, and this cone is called as acceptance cone. Why acceptance? Because all the light that is incident in this cone, that will be accepted and it will pass through the optical fiber. If light is going out of the the acceptance cone, then it will be rejected, it will not be passed through the optical fiber. So just on the basis of the Snell's law, we can design the optical fiber. It's very simple. So obviously acceptance angle is a 2-dimensional angle, whereas the acceptance cone will have the 3D angle. तो उसको हम कौन सा एंगल कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। तो दैट विल बी अ सॉलिड एंगल। और जब भी लेजर इसको कनेक्ट किया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में लेजर कनेक्ट करेंगे, तो दैट लाइट शुड बी फोकस विद इन दैट एक्सेप्टेंस कोन। नहीं तो लाइट बाहर जा रहा है, आप लेजर का कितना भी पावर बढ़ाओ तो आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? Now this formula is very simple, it is very simple to remember and it is very easy to forget also. So I repeatedly tell students
that you will get confused about this formula, and people don't believe it, but I can show you some examples also. Okay, so tomorrow we'll go for numericals on this formula, and you have to prepare some presentation जिनके रह गए वो presentation तैयार करो optical fiber application पे. You have to take only one application and discuss in detail. Okay.